ایران آبنائے ہرمز کو اپنی شرطوں پہ کھولنا چاہتا ہے، عمان کہتا ہے مذاکرات مثبت سمت میں ہو رہے ہیں، امریکہ کہتا ہے معاہدے کے قریب ہے، حوثی سعودی عرب کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں، ایران ہزاروں ہلاکتوں کا دعویٰ کر رہا ہے، سیکیورٹی فریم ورکس اور پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ایک جو نیا معاہدہ سائن ہو چکا ہے۔ امریکہ نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے، ایرانی فوجی طاقتیں ختم کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور پھر بھی واشنگٹن آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں اتنا محتاط کیوں ہے؟ ایران کہتا ہے کہ پہلے ہماری شرط مانو پھر آبنائے ہرمز کھلے گی، عمان کہتا ہے مذاکرات بہتر اور مثبت سمت میں گامزن ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم معاہدے کے قریب ہے، لیکن ایران کے سپریم نیشنل کونسل کی سیکیورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 6 شرائط پوری کی جائیں گی تو آبنائے ہرمز کھولی جائے گی۔ اور اسی دوران سعودی عرب کی جازان ریفائنری پہ حملہ کیا جاتا ہے، ذمہ داری حوثیز نے قبول کی ہے۔ ادھر جب سے ایران کی یہ جنگ شروع ہوئی ہے اب تک جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 3519 افراد جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں، اور سب سے اہم پیش رفت اس وقت پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا نیا دفاعی ایگریمنٹ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی تفصیل سے نظر ڈالیں گے، کیا یہ واقعی مسلم امہ کا نیٹو بننا چاہ رہا ہے، تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ خطے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آبنائے ہرمز کب کھلے گی، اور کیا واقعی ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ آبنائے ہرمز کو زبردستی کھلوانے کا خطرہ موڑ لے سکتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں توار پاکستان، میرا نام ہے صوفیہ صدیقی اور یہ ہے ہمارا نیوز وی لاگ کا چینل جس میں ہم گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈیولپ ہونے والی اہم خبروں کا اور تجزیہ اس کا لے کر آتے ہیں۔ آج کی جو سب سے بڑی کہانی ہے وہ ایران کے اور امریکہ کے آس پاس گھوم رہی ہے۔ آبنائے ہرمز اور پورے مشرق وسطیٰ میں بدلتے ہوئے طاقت کے توازن کو اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے اور بڑے بغور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ایران کے جوہری پروگرام کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور اس کی عسکری طاقت کو کمزور کر دیا ہے، دوسری طرف ایران کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز طاقت کے ذریعے اگر کوئی کھلوا سکتا ہے تو کھلوا کے دکھا دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تہران کی جب تک شرطیں پوری نہیں ہوں گی آبنائے ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ درمیان میں موجود ہے عمان، اور عمان کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے، اہم بڑی پیش رفت ہو رہی ہیں جو کہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر آبنائے ہرمز اتنا اہم کیوں ہے۔ بہت بار ہم نے آپ کو بتایا آبنائے ہرمز خلیج فارس کو، خلیج عمان کو اور بحر عرب کو آپس میں ملانے والی ایک اہم کنیکشن کا راستہ ہے۔ دنیا بھر کی توانائی کا 30 سے 25% اسی علاقے سے گزرتا ہے جس میں گیس اور تیل کے بڑے ذخائر شامل ہیں، اسی لیے اگر یہاں جہاز رانی متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر پوری دنیا کی جو صنعتیں ہیں ان کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ تیل کی قیمتیں، عالمی شپمنٹ، انشورنس کمپنیز، گیس کی قلت، صنعتی پیداوار اور دنیا کی معیشت سب کچھ ایک ساتھ متاثر ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کی بات چیت کی جا رہی ہے۔ معاملہ ایک مفاہمتی تنازع تک کیسے پہنچا، جبکہ یہ جنگ تو ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی۔ Nobody thinks that کہ یہ جنگ آبنائے ہرمز کے آس پاس آ کر رک جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایران کی 6 شرائط کیا ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل کونسل کے سیکرٹری محمد باقر ذوالقدر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ایران سے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے 6 مطالبات کو تسلیم کرنا ہوگا، تب ہی آبنائے ہرمز کھلی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 6 بنیادی نکات کیا ہیں جن کی وجہ سے ایران اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھول دے گا۔ ایران کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر عائد جو پابندیاں ہیں جو کہ تجارت کے حوالے سے خاص طور پر ہیں اس میں نرمی اختیار کی جائے، دوسری جانب جنگ میں ہونے والے نقصانات کا معاوضہ ادا کیا جائے، تیسری شرط
ईरानी बंदरगाहों की जो बहरी नाकाबंदी है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। चौथी शर्त ईरान की है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो धमकी आमेज़ रवैया अख्तियार किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से उसका ख़ात्मा किया जाए। पाँचवीं शर्त यह है कि ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनको बहाल किया जाए। सो छठी और आखिरी शर्त जो कि ईरान की तरफ से रखी गई है वो इसी फ्रेमवर्क का हिस्सा भी है, जिसके तहत ईरान ये चाहता है कि इसके ख़िलाफ़ फ़ौजी और इक़्तिसादी दबाव का जो ख़ात्मा है उसकी ज़मानत फ़राहम की जाए। यानी तेहरान का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ जहाज़ों के गुज़रने का मसला नहीं है बल्कि ये ईरान का लेवरेज पॉइंट है। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए ओमान ये कह रहा है कि मुस्बत और तामीरी माहौल में मुज़ाकरात जारी हैं। ओमान ने फ़रीक़ैन से कहा है कि ऐसे इक़दामात से गुरेज़ करें जो मुज़ाकरात की पेशरफ्त को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की बात करें तो वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मुज़ाकरात का मुस्बत होना इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और यही पॉइंट आज अब्बास इराक़ची ने भी अपने पॉइंट में रेज़ किया है। इराक़ची के मुताबिक तकनीकी और कानूनी मामलात अलग अलग मौजूद हैं। ईरान और ओमान एक आर्जी बहरी रास्ते के लिए इत्तफ़ाक़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुस्तक़बिल में तेज़ तरीन रास्तों में शुमार किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका क्यों डरा हुआ है। इस सवाल का जवाब देखने के लिए समझना होगा हमें कि हो क्या रहा है। अगर अमेरिका वाकई ईरान के अस्करी सलाहियत तबाह कर चुका है और वाशिंगटन ये दावा भी कर रहा है कि उनकी फ़ौजी क़ुव्वतें महदूद हो गई हैं, तो इन सारी चीज़ों के बाद अमेरिका इतना मोहतात क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें जेडी वेंस के इस बयान से मिलता है, जहां अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्रामों को तबाह कर दिया है, इसकी रवायती अस्करी सलाहियत को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन जंग सिर्फ ये नहीं होती कि किसके पास कितने मिसाइल हैं। असल जंग ये होती है कि इससे आलमी कन्फेडरेशन अगर आबनाए हुर्मुज़ पे बड़े पैमाने पर कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है तो वो क्या है। ईरान के पास जोग्राफिया है, आबनाए हुर्मुज़ इंतहाई हसास और निस्बतन महदूद समुद्री गुज़रगाह है, यानी ईरान को लाज़मन अमेरिका से रवायती जंग जीतने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ इतनी सलाहियत दरकार है जहां जहाज़ रानी को ख़तरा हो, महंगा किया जा रहा हो और गैर यकीनी बनाया जा रहा हो, वो उसको इस पर खेल सकता है। और यही वो मकाम है जहां अमेरिका मोहतात नज़र आ रहा है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ तवील अरसे के लिए मुतासिर हो चुकी है। तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बढ़ सकती है मज़ीद। आलमी शिपमेंट महंगी हो रही है, मुतासिर हो रही है, इंश्योरेंस के अखराजात बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया की जो मईशत है वो कुछ हद तक दबाव में पहले ही आ चुकी है। लिहाजा इसे अमेरिका के लिए एक ऐसा पॉइंट समझा जा सकता है जो अमेरिका ईरान से डर रहा है, जिसकी वजह से ये कहना भी मुश्किल नहीं है कि इस तस्वीर को अगर आप समझने की कोशिश करें तो बेहतर अंदाज में आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि अमेरिका ईरान का जो दबाव है वो बरकरार रखना चाहता है, लेकिन हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर जंग की सलाहियत और फ़ौज की जो कीमत है उसके ऊपर नहीं देखना चाहता। यानी कि वो अपनी सेंसिटिविटीज़, अपनी रियासत, अपनी दफाई सलाहियत को इन तमाम चीज़ों पर कुर्बान नहीं करेगा। सऊदी अरब की डिज़ान के रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। यमन के हौसीज़ ग्रुप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अरामको के रिफाइनरी को एक ड्रोन से निशाना बनाया है। हौसी तर्जुमान याया सरी के मुताबिक ये हमला सऊदी ड्रोन और यमनी इलाकों की फ़िज़ाई हदूद को महदूद करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सऊदी वज़ारत तवानाई के मुताबिक रिफाइनरी से मुंसलिक तनसीब पर
आग लगी हुई है, जिससे सनती जो पैदावार करने वाली टीम है उसने इस आग पर तो काबू पा लिया है, जानी नुकसान नहीं हुआ है। ताहम वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। यहाँ एक और अहम बात है, वो अहम बात यह है कि हौसियों ने इस हमले का दावा कबूल कर लिया है। गुज़िश्ता वीडियो में भी हमने आपको ये बताया था। सऊदी हुकाम ने आग लगने की तस्दीक कर दी है। इन दोनों चीज़ों के दरमियान बराह रास्त आज़ादाना तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं। अब ज़रा सा समझें कि जज़ान की जो ऑयल रिफाइनरी है वो क्यों ज़रूरी है। जज़ान की जो गुंजाइश है, जज़ान की जो पैदावार है वो 4 लाख बैरल ख़ाम तेल रोज़ाना की है, और ये पहली बार नहीं है कि इस इलाका पर सऊदी तनसीब को निशाना बनाया गया है। जुलाई में भी हौसियों की जानिब से इस इलाके को और यवख का जो इलाका है उसके ऊपर उसको निशाना बनाया गया था। इसका मतलब ये है कि अगर इलाकाई तनाज़ा मज़ीद फैलता है तो सिर्फ़ आबनाए हुर्मुज़ नहीं, खलीज मशरिक़ वस्ता में रहने वाले और खलीज फ़ारिस के आसपास रहने वाले दीगर ममालिक भी मुतासिर होंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा ज़ाहिर किया जा सकता है। ईरान की जंगी सलाहियतों के ऊपर अगर बात की जाए तो ईरान से बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। ईरान के फोरेंसिक्स मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने कहा है कि 40 रोज़ की इस जंग के दौरान अब तक ईरान को 3,519 लोगों की ज़िंदगी का सौदा करना पड़ा है, और इन 40 रोज़ा वार के दौरान 3,000 के करीब मर्द, 500 के करीब ख़वातीन और 270 बच्चे, तलबा और तालबात भी शामिल हैं। इनमें मिनाब के शजराए तैयबा में मौजूद जो तलबा और तालबात हैं उनका ज़िक्र भी किया गया है। तो यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि इन हमलों के नतीजे में 38 बच्चे जो कि कम सिन थे, 5 साल से कम उम्र थे, इनको भी लुक़मा अजल बना लिया गया है। तो इरना ने ये रिपोर्ट शाया की है, और अभी इसका मतलब ये है कि इंसानी जानों में जो ज़िया हुआ है उसके नंबर यकीनन एक्सीड होंगे। अब एक और अहम सवाल है, अब ईरान की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है। ईरान ये कह रहा है, उसकी वज़ारत सेहत ने यह दावा किया है कि ईरान के सूबे फ़ारिस में होने वाला हमला जो कि लामर्द शहर में हुआ था, इसमें इनके बमों में फ़ॉस्फोरस का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। इनके मुताबिक वज़ारत सेहत ने तहकीकात की हैं, और उन्होंने अपनी तहकीकात में कहा है कि नताइज बैनुल अक़वामी फोर्सेस पर के लिए पेश किए जाएंगे और रिपोर्ट इसके लिए तैयार की जा रही है। ईरानी हुकाम का कहना है कि लामर्द में होने वाले जो रिहायशी इमारतों पे हमले थे उसमें स्पोर्ट्स हॉल को भी निशाना बनाया गया था, जहां उस वक्त तलबा और तालबात मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 21 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। लेकिन यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि फ़ॉस्फोरस का इस्तेमाल का ये दावा ईरानी हुकाम की तरफ से किया जा रहा है, और इसकी तहकीकात अब शुरू होंगी। और दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि इंसानों के ऊपर किए जाने वाले हमलों में फ़ॉस्फोरस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये एक बैन चीज़ है, बिल्कुल वैसे जैसे अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि ईरान अपने पीसफुल मकासद के लिए भी जौहरी प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आगे चलकर हम जिस हवाले से बात करेंगे, अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। अब वाशिंगटन के सामने 3 सवाल पैदा हो चुके हैं। पहला ये कि ईरान पर दबाव बरकरार रखा जाए, दूसरा ये कि आबनाए हुर्मुज़ को कैसे खोला जाए, और तीसरा ये कि ऐसा कैसे किया जाए कि आबनाए हुर्मुज़ के मामले में आलमी तेल की जो कीमतें हैं वो मुतासिर ना हो, कोई बड़ा बहरान ना बने। इस हवाले से भी अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने एक जुमला कहा है, और उन्होंने कहा है कि अगर ईरान वाली जो जंग है वो तवील मुद्दती तब्दीलियों में का शिकार हो जाती है और ये मसला हल नहीं हुआ, तो अमरीका पर जो जारी दबाव है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी हुकूमत ख़ित्ते में तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने की कोशिशें कर रही है। वेनेज़ुएला पे किए जाने वाला हमला वो आप बिल्कुल ना भूलिएगा, वो इस साल के बिल्कुल आगाज़ में किया गया था, और ये भी अमरीका की जो तेल की पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए एक इक़दाम था। अब इसी तनाज़े का मरकज़ बन चुकी है एनर्जी सिक्योरिटी। आगे चल के क्या होता है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। एक और अहम चैप्टर है जो रकम होता हुआ नज़र आ रहा है।
मुस्लिम नेटो, ये वो लफ्ज़ है जो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, यानी कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के माबैन जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसको मुस्लिम दुनिया का नेटो कहा जा रहा है। ये 3 मुल्क हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि मक्का का जो मुश्तरका दिफाई मुआहदा है, इस मुआहदे से क्या होगा। बार बार हम आपको बता चुके हैं, एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा, एक का रिस्पॉन्स पर सारे ममालिक रिस्पॉन्स करेंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने एक अहम बात कही है जो कि इस वक्त हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक रुकन ममालिक पर मुसल्लह तंजीमों की तरफ से जो हमला किया गया वो सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा, लेकिन क्या इस बात को बहुत कनेक्ट किया जा रहा है कि क्या ईरान के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, या ईरान अगर किसी मुल्क के ऊपर हमला कर रहा है तो वो भी इसी में काउंट किया जाएगा। तो इस हवाले से वो तुर्की के वज़ीर ख़ज़ाना का बयान है, हकान फ़िदान उनका नाम है, हकान फ़िदान कह रहे हैं कि ये मामला ईरान या किसी मख़सूस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। इसका बुनियादी मकसद तीनों मुल्क की सलामती को अमूमी तौर पर पुरअज़्म करना है। अगर किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो तीनों मुल्क मुशावरत के बाद तय करेंगे कि किस नौइयत का और किस हद तक मदद फराहम करनी है और किसको कितनी मदद की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो अरेंजमेंट्स हैं तुर्की के हवाले से, उसको मुस्तकिल तौर पर देखा जा रहा है कैसे बढ़ाया जाए। मिस्र की शमूलियत का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है इस पैक्ट एग्रीमेंट में। अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी सेलिब्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ आपको ये भी बता दूँ, गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में इस पैक्ट को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाउ आई विल टेल यू कि सऊदी अरब से भी हमने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स को सऊदी अरब की, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के झंडों से लहराया गया है, खूबसूरती से सड़कों को सजाया गया है। हमें ये वीडियोस वसूल हो रही हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, जिनको यकीनन अब तक आप भी देख चुके होंगे। सो फाइनल एनालिसिस में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि असल खेल है क्या। पूरी तस्वीर ये है जो आपके सामने रखी जा सकती है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को अपनी शर्तों पे खोलना चाहता है, दैट इज़ समहाउ ट्रू। ओमान कहता है मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में हो रहे हैं, अमेरिका कहता है मुआहदे के करीब है, हौसी सऊदी अरब की तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, ईरान हज़ारों हलाकतों का दावा कर रहा है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक जो नया मुआहदा साइन हो चुका है, इसके बाद नई जहतें और नई बातें चलना शुरू हो गई हैं। अमेरिका क्या वाकई डरा हुआ है? जंग की जो कॉस्ट है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, अमेरिका में करारदादें पेश की जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों का निचोड़ करके देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि जोग्राफियाई लिहाज से आबनाए हुर्मुज़ कितनी अहम है, इलाकाई नेटवर्क्स के लिए कितनी ज़रूरी है। सो बेटर टू लीड। अगर ख़िता ये समझ सकता है कि ईरान, CPEC, BRI और इस तरह के बड़े तमाम प्रोजेक्ट्स को मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका ख़िता, हमारा ख़िता, इस दुनिया का फ्यूचर बनने वाला है। आप क्या कहते हैं कि क्या ऐसा हो जाएगा? तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। इस जंग का अंजाम आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? एनर्जी के जो एसेट्स हैं वो क्या इसी तरह चलेंगे? तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिए। तवारे पाकिस्तान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप ऑथेंटिक मालूमात को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये वीडियोज़ आपके लिए लेकर आने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत मेहनत करते हैं और हमें आपके ताउन की ज़रूरत है।